Good morning, dear students. So, students, today I am going to start fourth question of exercise 3.1. So, in fourth question, find the angles measure y. Y value we have to find out in the following figures. Y, where is y written? Then we have to find out value of that. So, in this figure, y is here and here y is here. So, this value we have to find out. So now first figure is a quadrilateral. So how will you solve out this? So students, let this is A, B, C, D, E. Okay. Name this figure. A, B, C, D is a quadrilateral and ये extend की गई है इसकी एक side. So we have to find out value of this y. So this you can do by two methods. One method is these are linear pair. एक straight line पर अगर ऐसे angles होते हैं, so these form a linear pair. So at that then you can find out value of y by linear pair. Sum of linear pair means linear pair का sum ही क्या आ जाता है आपके पास 180 डिग्री. जो एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. देन यू कैन फाइंड आउट. और सेकेंड मेथड इज these all are interior angles of a quadrilateral, these four. So by using that property that sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree, then also you can find out its value. So let's do. I will tell you by the both methods. Okay, now its solution. First part, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral where angle A is 65 degree, angle B is 80 degree, angle C is 95 degree and angle D. You can't write it as angle D क्योंकि completely तो यही बन जाएगा. आप इसको लिखोगे CDA. एंगल CDA इज व्हाट इज दिस y. इनको भी लिख सकते थे आप DCB. इस C एंगल को कैसे लिख सकते थे? DCB. इसको CBA लाइक दिस. ओके, अगर सिंगल दिया हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर ये CDA आएगा. ओके, नाउ वी नो दैट सम ऑफ, यहाँ लिख दो इसको, सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, so in this triangle also then we have angle A 65 degree plus 80 degree plus 95 plus y is 360 degree. Now you can find out value of y. Value of y is, now add this 240 plus y is 360 degree. तो y कितना आ गया यहाँ से? 360 minus 240. So value of y is here 120 degree. So this is our answer. Value of y is 120 degree. You can do this method by this also, by linear pair also. Then how will you do? Then और आप क्या करोगे? यहाँ से एंगल, ये कौन सा एंगल बनेगा? EDA. एंगल EDA प्लस CDA. CDA is 180 डिग्री. यहाँ से आप लिख दो लीनियर पेयर. ओके, these form linear pair. Now this is 60 plus y is 180. Then y is 180 minus 60. So y value is 120 डिग्री. यहाँ पर भी y की वैल्यू 120 आई थी, यहाँ पर भी 120 है, वैल्यू तो सेम ही निकलेंगे ना. सो
आप क्वेश्चन को देखो कि उसमें आप कितने टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जैसे हमारा टॉपिक ही क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है तो हमने इसको यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया है इसको, दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तब हमने इसको ऐसे किया है। और आप इसको लीनियर पेयर से भी कर सकते थे, ठीक है, लीनियर पेयर से हम इसको ऐसे करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल। Then look here at the figure, all the angles are exterior angles, these all angles are exterior angles. Then angles are exterior, तो आपके पास exterior angle वाली प्रॉपर्टी भी है, that sum of all exterior angle of any polygon is 360 degree, ठीक है। now let this is A, this is A, B, C, these corner points are these, ठीक है। आप इनको भी मान सकते हो, let this is P, now this one is Q and this one is R, ताकि हम एंगल्स लिखें, प्रॉब्लम ना हो हमें। नाउ दिस इज ABCD, ABC is a triangle and these angles are exterior angles. Now let's do its solution. Now second part solution is ABC is a triangle where now this angle will be PAC, angle PAC, PAC is Y, ये कौन सा एंगल बनेगा, ABQ, ABQ is 150 degree and this angle is BCR, BCR is 90 degree, form exterior angles, exterior angles. Now we know that, अब आप यहाँ लिखो, we know that sum of all exterior angles of a polygon is 360 degree. Okay, so angle Y plus 150 degree plus 90 degree is 360 degree. So Y plus 240 is 360 degree. So Y is 360 minus 240. So it is also, its value is also 120 degree. So hence value of Y is here 120 डिग्री। जब हमारे पास कोई भी पॉलीगन गिवन है और उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, देन देयर सम इज 360 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दिस इज अ पेंटागन एंड लुक हियर एट द फिगर, ऑल द एंगल्स आर exterior angles except this. So here also we have to draw the exterior angle. Okay, so this will also 90 degree. If this is 90, then this will also be 90 by linear pair. So what you can do here, you can apply the same property that let all these angles are, these all are exterior angles. By exterior angle sum property you can find out this one also, value of Y, that sum of all exterior angle of a polygon is 360 degree. So let's do, how will we do, A, B, C, D, E, these are exterior angles
तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए बी सी डी, मीन्स ये एक्सटीरियर ही है। या फिर जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट्स में बताया था कि आप यहाँ पर उनके नेमिंग देकर भी कर सकते, ठीक है। नाउ ए बी सी डी इज अ पेंटागन and all the given angles are exterior angles of pentagon या फिर figure, and we know that sum of all exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। ओके, आप यहाँ पेंटागन भी लिख सकते हो, पॉलीगन भी लिख सकते हो। सो हेंस एंगल y प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज 360 डिग्री। आप इसको भी निकाल कर दिखा सकते हो यहाँ पर कि बाय लीनियर पेयर। ओके, सो y इज y प्लस 150 240 310 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 360 माइनस 310। सो वैल्यू ऑफ y इज हियर 50 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ y इज 50 डिग्री। स्टूडेंट्स बस आप देखो वहाँ पर कि गिवन क्या है, यहाँ पर सारे एक्सटीरियर एंगल्स गिवन हैं, देन एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन। इन फोर्थ पार्ट this is also a quadrilateral, but here आप ध्यान से देखो only 2 angles are given and 1 y, this is not given। अगर ये होता तो हम प्रॉपर्टी से डायरेक्ट कर सकते थे। now how will we do this question? look here, one symbols are given, these symbols shows that AB is parallel to CD। इसका मतलब यही है, जब ये सिंबल्स होते हैं इट मीन्स कि ये इस डायरेक्शन में, इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। इन अर्लियर क्लासेस ऑल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट दिस। जब हमारे पास 2 लाइन्स के बीच में अगर ये सिंबल होता है इट मीन्स दीज आर पैरेलल। ऐसे भी लिखते हैं हम AB इज पैरेलल टू DC, ये भी एक सिंबल होता है, ये हम वैसे दिखा देते हैं, पर अगर फिगर में ये है इट मीन्स बस यही पैरेलल है, ये लाइंस पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, ये सिंबल्स गिवन ही नहीं है। सो दैट्स वाई ओनली दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। अगर पैरेलल होते हैं तब भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी वहाँ से प्रॉपर्टीज़ की थी आपने कि पैरेलल होते हैं तो कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, एक्सटीरियर, ये बहुत सारा बताया गया था आपको। तो आप उसी का यूज़ करोगे यहाँ पर भी। तो कैसे यूज़ करना है? नाउ इन फोर्थ पार्ट ABCD is a quadrilateral where AB is parallel to DC। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे is parallel to ऐसे भी लिख सकते हो, बट यूज दिस सिंबल। पैरेललिटी का सिंबल होता है, अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये क्या लाइन बन गई यहाँ से, ट्रांसवर्सल। BC is a transversal and BC is a transversal। देन यहाँ से ये दोनों एंगल्स कौन से बन गए आपके पास, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। देन y प्लस 80 इज
180 डिग्री। यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आ गया 180 डिग्री। एंड दीज फॉर्म को इंटीरियर एंगल्स, या फिर आप लिख सकते हो एंगल्स ऑन द सेम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जब सेम साइड पर होते हैं ना तब भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं उनको, उनका सम भी 180 डिग्री ही होता है। सो y इज़ 180 माइनस 80, सो वैल्यू ऑफ y इज़ 100। सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 100। आपको यही देखना है, ये 100 है, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा पैरेलल लाइन से, तो इनकी इसकी भी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 100। देखना इन सब का सम 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको भी निकाल सकते थे, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से करो या फिर ऐसे प्रॉपर्टीज लगाओ। सो चॉइस इज योर्स। ठीक है, कि आप उसको बट इन एग्जैक्ट वे, कि आप उस वे में कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसको। ठीक है, सो दीज आर द योर क्वेश्चंस।